Thank you, Jesus. Everyone lift your hands to the heavens. Father, I pray in the name of Jesus. प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ, Every hand that is lifted up to the heaven, जो भी हाथ यहाँ पर उठाया गया है प्रभु, let them go with the hands full, Lord. उनके हाथ प्रभु ये भर के जाएं यहाँ से। Father, whatever the expectation they came up with, प्रभु आज जो भी लालसा के साथ प्रभु, जो भी प्रार्थना के साथ ये लोग आए हैं, let it be fulfilled today, Lord. होने दीजिए कि आज वो पूरी होने पाए। Not even a single hand will go empty. एक भी हाथ यहाँ से आज खाली ना जाए, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Father, speak through me to your people, Lord. In the name of Lord, manifest yourself. Manifest around us, Lord. Manifest among us. We surrender to you, Lord. Everyone say, I surrender to you, Lord. सब लोग बोलेंगे प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। Talk to me today. आज मुझसे बात कीजिए पिता। Talk to me today, Lord. प्रभु आज मुझसे बात कीजिए। I surrender. मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। Father, as they confess, Lord, speak to them, Lord, for their sakes, so that they will be transformed. Your word is what transforms them, Lord. We give you all the glory and honor, Father. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen. आमेन। Thank you, Jesus. Anyone remember what we talked last Sunday? किसी को याद है कि हमने पिछले सप्ताह क्या बात करी थी? How to pray. Can anyone give me a quick recap? कोई छोटा सा मतलब सार बताना चाहेगा कि क्या हुआ था पिछले हफ्ते? Because I want to connect from there. Even I forgot what I said. एनीवन? Just translate. मैं जो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो मैं आज का मेरा जो शिक्षा है उसको पिछले हफ्ते से कनेक्ट करना चाहता हूँ और शायद मैं भी भूल गया हूँ कि मैंने क्या सिखाया था पिछले हफ्ते। जीसस सबकी प्रेयर सुनते हैं, इवन डीमंस की भी सुनते हैं जब उन्होंने पिग्स के वो Yes. आपने बोला था। Okay. Let's go to book of Matthew chapter 13. मत्ती 13 जीवन। And before I read this, Matthew chapter 13, and before I read मत्ती that, 13 मैं इससे पहले कि मत्ती पढ़ूं, let's go to book of Isaiah chapter 6. मत्ती से पहले हम यशाया में चलते हैं। Yes. And it says in the verse 10, यशाया 6 उसका 10। make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their ears, and hear with their ears, and understand in their heart, and convert, and become whole. तू इन यशाया 6 का 10, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। He is saying to the prophet Isaiah, यहाँ पर परमेश्वर यशाया से कह रहा है, make the heart of this people fat. यहाँ पर परमेश्वर यशाया से कह रहा है कि अब मेरे लोगों के मन को मोटा कर दे, Make their ears heavy, उनके कानों को भारी कर दे, and shut their eyes. उनकी आंखों को बंद कर दे। And he, you know why? आपको पता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं वहां पे परमेश्वर यशाया? Lest they will see with their ears, they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart. And when that happens, they will be converted and become whole. यहाँ पर ये लिखा है कि जब वो ऐसा हो, अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, तो वो अपने मन को फिराएंगे और चंगे हो जाएंगे, They shall be become whole. वो पूरे हो जाएंगे। This is the nature of God. ये परमेश्वर का हृदय है। And today I am going to go deeper in the discernment also. मैं आज डिसर्नमेंट में और गहरा जाऊंगा। But before that, I want you to know the nature of God.
इससे पहले कि मैं आपको डिसर्नमेंट क्या होती है कि हमें जानना परखना सामने वाली चीज़ को, और उससे पहले मैं डिसर्नमेंट सिखाऊंगा, पहले मैं परखना सिखाऊंगा, उसके बाद हम परमेश्वर के जो स्वभाव है उसमें और गहरा जाएंगे। So he was saying, if you can see with your eyes and hear with your ears, and if you understand what God is saying to you, यहाँ पर परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर तुम अपनी आंखों से देखो, कानों से सुनो, अपने हृदय से समझो उस बात को, he can't resist himself from healing you. वो अगर तुमने ये चीज़ समझ ली तो वो अपने आप को रोक नहीं सकता कि वो आपको चंगा ना करे। He can't stop himself. Once you get transformed into the God, जब आप परमेश्वर के प्रति रूप में हो जाते हैं, he can't stop himself from helping you. वो अपने आप को रोक नहीं सकता, मतलब परमेश्वर और आपके बीच में कोई बाधा नहीं रहती वो पूरा होने में। You think like maybe God will keep me some restrictions, maybe God won't answer me if I have selfish reasons. शायद हम ये सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे मतलब मैं परमेश्वर के जैसा ना हो जाऊं तो परमेश्वर मेरे बीच में कोई बाधा उत्पन्न करेगा। Answer me this. He is saying clearly, if my people hear my voice and if they get transformed, I can't resist myself from helping them. तो यहाँ पर परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर मेरे लोग जान जाएं कि मैं कौन हूँ और मुझे पहचान जाएं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा और मैं आऊंगा और उनको पूरी रीति से बदल दूंगा। So God is saying to Isaiah, Isaiah, make the people eyes shut. यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि इसलिए यहाँ पे यशायाह को परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लोगों की आंखों को अंधा कर दे और उनके मन को मोटा कर दे। Make my people's eyes shut. मेरे लोगों की आंखों को बंद कर दे, Because if they see me, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे देख if you लिया hearing this word और उसने ये वचन सुन लिया and seeing this word with your eyes, और आपने आंखों से देख लिया and if you let this word transform you, और आपने जो वचन आपके जीवन में बोला गया उसको उसका काम करने दिया, you know what happens? आपको पता है क्या होगा? Your breakthrough is next. Your breakthrough is next. और वो समय होगा जब हम अपने उस जो हमारा छुटकारा है, हमारी हर एक चीज है, उसके सबसे नजदीक होंगे हम। Whatever you came with, जिस भी लालसा से आप यहाँ पर आए it will be done. और यहाँ पर वो हो जाएगा। Because God is saying, I can't resist myself. If you ask in my name, I shall give it so that your joy will be fulfilled, not my joy. तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है जिस पल तुमने जान लिया कि कौन है परमेश्वर, कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपको आपका छुटकारा पाने से रोक सके। So God is saying, make my people's eyes shut. पर यहाँ पर यशायाह को परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों की आंखों को बंद कर दे। Because the nature of God is, if you turn your eyes to the God, He can't resist you. क्योंकि परमेश्वर क्योंकि जहाँ जिस पल आपने अपने आप को पूरा समर्पित किया परमेश्वर की ओर, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और आपकी मदद करने के लिए आएगा। You know the reason why many of the Christians are suffering? आपको पता है कि आज बहुत सारे मसीह लोग क्यों सफर कर रहे हैं? Because their eyes are shut. क्योंकि उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। Their heart is made, the heart became fat. क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। And they can't able to understand what they are preaching, what they are hearing. और ये हो गया है कि वो सुनते तो हैं, वो चर्च तो जाते हैं, वो सुनते तो हैं, वचन को पढ़ते तो हैं, पर वो समझ नहीं पाते कि उस वचन का मतलब क्या है। If you chose to get transformed today, पर अगर आज आप ये चुनाव करते हैं कि आप वचन के द्वारा बदलना चाहते हैं, as long as the Lord lives, आज जब तक परमेश्वर जीता है, as long as His word says, जब तक उसका वचन कहता रहेगा। let me tell you one thing. एक बात मैं आपको कहूंगा, आज Earth might pass away शायद ये पृथ्वी खत्म हो जाए, and heaven will pass away, शायद स्वर्ग खत्म हो जाए, but His word will last forever. पर उसका वचन हमेशा And His रहेगा। words is saying to you, और इसका वचन आपसे आज कह रहा है, if you turn your eyes unto me, अगर तुम मेरी और अपनी आंखों को लगाओगे and if you accept the transformation in you, और जो वचन तुम्हारे अंदर काम करना चाहता है you उसको shall करने be दोगे, unstoppable. तो अगर जब तक तुम अपनी आंखें मेरी ओर लगाओगे और जो वचन तुम्हारे अंदर काम करना चाहता है उस काम को करने दोगे, तुम बदल जाओगे। You shall be unstoppable. तुम ऐसे होगे कि जो कहते हैं ना, जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिसकी कुछ भी अनस्टॉपेबल, मतलब कि रुक ही नहीं सकता वो। But here is the thing. पर एक चीज है यहाँ पर, Devil can't stop God from giving whatever you want. जो शैतान है वो परमेश्वर को नहीं रोक सकता उसको देने को जो तुम्हें वो देना चाहता है। That's why he knows that he has to stop you from transforming yourself. इसीलिए वो चाहता है कि वो आपको रोके कि आप परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर काम करना चाहता है उसको आपको ना होने दे। You will hear the voice of the Lord, but enemy comes and say, "Oh,
Just be like everyone. आप सब लोग परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, पर शैतान आएगा और वो कहेगा कि ये सब बेकार है और जैसे Just ignore it. It's fine. ये इग्नोर है, जो तू सोच रहा है वो गलत है. Have you ever seen enemies stopping anything from God? सॉरी, Have you ever seen enemies stopping God from giving to you? हमने कहीं पे ऐसा देखा या ऐसा पढ़ा कि शैतान ने परमेश्वर को रोका आपको आपकी आशीष देने से? Never. कभी भी ऐसा नहीं हुआ. But he always made people, he always stopped from people getting transformed. पर वो परमेश्वर को तो नहीं रोक सकता, ही ना ही रोक पाया, पर वो आप लोगों के और हम सबके जीवन में काम करता है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करें ताकि हम बदल ना जाएं और परमेश्वर हमें आशीष There ना is दे. the spiritual battle. यहाँ पर एक आत्मिक युद्ध चल रहा है. You all think like spiritual battle is demon will come and he will gonna attack me, he gonna push me from mountain or he gonna kill me in the dreams. हम शायद हम में से सब लोग यही सोचते होंगे, या जो विश्वासी होंगे वो ये सोचते होंगे कि शैतान आएगा, हमें रोकेगा कि तू बाइबल मत पढ़, या हमें पहाड़ से गिरा देगा, या हमें नदी में डुबा देगा. ये नहीं है आत्मिक युद्ध. The real spiritual battle is for you to getting transformed into God. पर जो असली आत्मिक युद्ध है वो ये है कि जब आप वचन को पढ़ रहे हो, जो वचन जो वो काम आपके अंदर करना चाहता है, वहां पर आके उस काम को वो आपके अंदर रोकता है. He will stop you. वो आपको रोकता है. And becoming unstoppable is your duty. पर जो हमारा एक फर्ज है वो ये है कि जब शैतान हमारे अंदर और हमारे वचन के बीच में हमारे बीच में आता है, हम उसको वहां पर रोकें. ये हमारा ड्यूटी है. Imagine if I tell you that I will give you 10,000 next week. और आप सोचिए कि मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको 10,000 अगले हफ्ते दूंगा, But you need to do this work for me. पर आपको मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा. And if I tell you this, how many of you will believe that? आप में से कितने लोग विश्वास करेंगे? If I tell that I will give you 10,000 if you do me this work? Everyone, right? Will there be any questions asked? कोई सवाल पूछेगा? No, right? सिंपल है कि 10,000 दोगे आप, मैं आपको काम करूंगा, मैं आपको 10,000 दूंगा. No questions asked, right? यस. So, and if you do not do the work, I cannot give you the 10,000. पर अगर तुमने वो काम नहीं किया तो मैं आपको 10,000 रुपए नहीं दूंगा. And you going to do it because you have faith in me. पर आप उसको करेंगे क्योंकि आपको मेरे ऊपर विश्वास है कि अगर पीटर भाई ने कुछ बोला है और कुछ वाचा बांधी है तो हम ये काम करेंगे, तो वो हमें जरूर देगा, You trust me. क्योंकि आप मुझे विश्वास करते हैं. But now let me ask you the same question. पर आप एक सवाल पूछने दीजिए. If Lord is faithful अगर परमेश्वर विश्वास योग्य and He says, if you follow my word, I'll be with you. और परमेश्वर यहाँ पर विश्वास योग्य और वो ये कहता है कि अगर तू मेरे वचन पर चलेगा तो मैं तुझे I will give this to you. और मैं तुझे उसका उत्तर दूंगा. I will make you my son. मैं तुझे अपना बेटा और बेटी बनाऊंगा. I will give you everything that you want. मैं तुझे हर एक वो चीज दूंगा जो तेरे हृदय में आई है. I will come every day to have fellowship with you. मैं हर दिन तेरे साथ आऊंगा और तेरे साथ बैठूंगा. I'll be your shepherd. और मैं तेरा चरवाहा होऊंगा. And you shall lack nothing. और तुम कुछ भी नहीं, मैं तेरा चरवाहा होऊंगा और तुम्हें किसी भी चीज की घटी नहीं होगी. And if Lord says that to you, और परमेश्वर अगर आपसे ये कहता है आज, why we don't trust Him? हम क्यों नहीं विश्वास करते? He says, do this and I will give this to you. परमेश्वर कहता है कि अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे उसके बदले में ये दूंगा, तो हम क्यों नहीं विश्वास करते? Why? क्यों? क्या हम साथ में सब इधर देखेंगे? सब प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट. इधर How many of you are understanding this? कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात? How many of you know that if you follow the word, God will do something for you? कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर आप वचन पर चलेंगे और जैसा वचन कहता है वो आपके जीवन में होगा? You know that, okay, if I want the harvest, I need to sow the seed. कितने लोग ये जानते हैं कि अगर मुझे खेती को काटना है तो मुझे उसके लिए बीज बोना पड़ेगा? Lord says, we need to sow the seed. परमेश्वर कहता है कि हमें बीज को बोना पड़ेगा. Sow the seed and I will bless your harvest. You will have 100-fold. क्योंकि जब तू बीज बोएगा तो मैं उसे सींचूंगा और तू उससे फसल को पाएगा, और वो फसल 10 गुना नहीं 50 गुना नहीं 1000 गुना होगी. I don't care if it's a drought और मैं season. ये भी नहीं देखूंगा कि जो वेदर है उस फसल को उगाने के लिए है भी या नहीं है, उसके बावजूद भी चाहे यहाँ पर सूखा क्यों ना हो, पर अगर तूने बीज बोया तो मैं उससे सींचूंगा और तुझे फसल को दूंगा. I don't care about others. मैं नहीं जानता कि दूसरों के जीवन में क्या होता है. Maybe your friends getting 20-fold, हो सकता है कि आपके दोस्त अगर किसी चीज को बो रहे हैं उसका वो 20 गुना काट रहे some हैं. getting 50-fold, हो सकता है कि 50 गुना भी काट रहे हो. and you're going to be estimated on the 50-fold. और
और तुमने भी अपना ये लगाया कि शायद मुझे भी 50 गुना मिलेगा, And your pastor will say 80-fold. और पर हो सकता है कि आपका पासवान आपको कहे कि आपको 80 गुना मिलेगा, And you might think like, okay, there will be 80-fold, you're going to be expecting. पर और फिर शायद आपका मन हिले, ओ 80 गुना मिलेगा, अच्छा मैं बोल देता हूँ। But Lord says 100%. पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे 100 गुना दूंगा। Do you think He will let you compromise in something? आपको लगता है कि परमेश्वर एक ऐसा जन है जो आपको किसी भी चीज पे समझौता करने देगा? Do you think He will settle for less? हो सकता है कि वो आपको किसी कहेगा कि नहीं, तूने फरारी मांगी थी, मैं तुझे मारुति पे, प्लीज इतना ही है, तू इतने पे सेटल कर ले। He will never let you compromise. परमेश्वर अगर कुछ देता है तो कभी भी आपको उसमें समझौता नहीं कराता, वो पूर्ण रूप से देता है। As a fathers, I think how many of men are here? कितने पुरुष लोग हैं यहाँ पर? Let me see. मैं एग्जांपल दे, कितने पुरुष है? तो पुरुष नहीं हो? Let me see your hands. You have any doubts? जोएल कहाँ है? जोएल? So let me ask you this. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। If your son needs something, अगर आपका बेटा या बेटी कुछ चाहता है, will you let him compromise? क्या आप, अगर आपके पास पूरा हो उसको देने के लिए, क्या आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं, मेरे बेटे ने 2 रोटी मांगी है पर मेरे पास 4 है, फिर भी मैं उसे 1.5 दूंगा। Will you let him compromise? क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने देंगे? माँ भी नहीं करने देगी, Come बाप भी on. नहीं करने देगा, बहन भाई भी नहीं करने देंगे। Let me. बात कीजिए कि आप क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे अगर आपके पास देने के लिए पूरा For हो। 5 minutes, imagine you are the billionaire. आप अब 5 मिनट के लिए सोचिए कि आप अरबों खरबोपति हैं। आमेन। Man? Only man. नहीं, मैन वुमन भी। No, we should not add a word to it. ओके ओके, I'm just joking. हाँ, आप सोचिए कि आप 5 मिनट 5 minutes, you guys are billionaires. आई वांट टू बिलीव फॉरएवर। So let me ask you this. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। Your son went to the school आपका बेटा स्कूल जाता है and get bullied by some, someone else came in a rich car and your son got bullied. और मैं आप अरबपति हैं, आपका बेटा है, वो स्कूल जाता है, पर आप उस बेटे को एक दूसरा अमीर व्यक्ति का बेटा वहाँ पर सताता है, बहुत बड़ी कार में आता है, And your son will come and say to you, और आपका बेटा आपको आके बोलता है कि ऐसा उसने मुझे परेशान किया। think like your son is so disobedient. आप ये सोचिए कि आपका, अभी थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप अरबपति हो, जो आपका बेटा है वो बिल्कुल अनाज्ञाकारी है, He never listens to you. वो आपकी बात को सुनता ही नहीं है। But that day he will come to you and he say, Daddy, there's something happened. पर उस दिन जब उसको स्कूल में सताया गया, उस दिन वो अपने पिता के पास आता है और कहता है कि प्रभु, पापा आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ। What you gonna do next? आप क्या करेंगे उस दिन? Next day will you let him go on a walk? आप क्या उसे स्कूल जाने देंगे ऐसे ही? Or will you let him send in a very luxurious car? और आप उसे नई कार खरीद के देंगे कि वो उसके साथ जो उसने उसे बुली किया था उसके साथ कंपेयर कर सके? What you gonna do? आप क्या करेंगे उस दिन? Will you let your son compromise? क्या आप अपने बेटे को यहाँ पर वो समझौता करने देंगे? I think वो कह रहे हैं, यहाँ पे मैसेज ये दे रहे हैं कि अगर आपका बेटा अनाज्ञाकारी भी है, आपकी बात को नहीं भी मानता, पर वो अगर आपके पास आके बोलता है कि मेरे साथ स्कूल में ये गलत हुआ, किसी अमीर व्यक्ति के बेटे ने मुझे सताया, उस दिन आप ये भूल जाएंगे कि आपका बेटा अनाज्ञाकारी है, आपकी बात नहीं सुनता, आप वो करेंगे जो उसके लिए बेस्ट होगा। what you gonna do? आप क्या करेंगे उस दिन? Will you let him walk? Come क्या आप on, the उसे- way you respond, God will respond to you. प्लीज़ यहाँ पर जैसे आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसका रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि जैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे ऐसे ही परमेश्वर आपकी बात को रिस्पॉन्ड करेगा। He said, treat the others the way you want to be treated. परमेश्वर कहता है कि तुम दूसरों को ऐसा ट्रीट करो, ऐसे व्यवहार करो जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ व्यवहार हो। Because when you treat others the way you want to be treated, क्योंकि जब आप किसी को ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, God will treat me just like that. परमेश्वर हमें भी ऐसे ही तैयार करेगा। तो Amen? So what you gonna do to your son? आप क्या करेंगे अपने बेटे के साथ? मैं नीता अंबानी गोल्ड डायमंड वाली कार लेके दूंगी उसको। What about you? आप लोग क्या I करेंगे? asked the men and men are silent. बताओ भाई, क्या आप क्या करोगे? Are you guys in shock that you are billionaires? मतलब हो सकता है कि शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा हो कि आप अरब खरबपति हो। See, whenever a word is released, हम लोगों से पूछो। हमने तो सोच लिया, मैं तो अपने बेटे को गोल्ड की कार में भेजूंगी। whenever the word is released, इसीलिए जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है, you need to grab it. आपको उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। Because there is anointing here. सारी विमेन ने पकड़ लिया है।
Yeah. क्योंकि अगर यहाँ से पुलपिट से चाहे मजाक में भी कोई एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आप 5 मिनट के लिए अपने आप को अरबपति सोचें, तो आप विश्वास से उस वचन को रिसीव कीजिए, क्योंकि जो यहाँ से बोला जाता है वो ऐसे ही नहीं बोला जाता. Next time, whenever I go to God and ask like, God, can you please make my churchmen as billionaires? क्योंकि अगर मैं अब अगली बार जाऊंगा अपने पिता के पास कि प्रभु आप मेरे जो चर्च में जितने भी पुरुष आते हैं उन सबको आप अरबपति बना दीजिए, You know what he gonna say? पता है वो क्या कहेगा? They can't able to imagine themselves for 5 minutes. Do you think they can live for the rest of their life? परमेश्वर कहेगा भाई तू तो उनको अरबपति बनाना चाहता है, पर उनको मैंने बोला कि तू 5 मिनट के लिए सोच लो. Amen. हिंदी में बोलने दो मुझे. परमेश्वर कहेगा जब सुनो, बहुत ज़रूरी है. भाई जाता है रात को प्रार्थना करने की, प्रभु मेरे चर्च के जितने भी पुरुष हैं सबको ना अरबपति बना दो. प्रभु कहेगा कि भाई तू तो अरबपति बनाने के लिए कह रहा है, वो 5 मिनट के लिए भी अपने आप को अरबपति नहीं सोच पाए, तू मुझे कह रहा था उनको बना दे. सो जब यहाँ से कुछ बोला जाता है आप उस पर विश्वास कीजिए और उस पर इमेजिन. You know what is imagination? आपको पता है कि इमेजिनेशन क्या है? मुझे उसकी हिंदी नहीं आती भाई, समझ जाओ. कल्पना क्या है? God created us in what? In His image. परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? अपनी समानता. In His. That means He gave us His imagination. इससे पहले कि उसने हमें बनाया, उसने हमें इमेजिन किया कि हम कैसे होंगे. That means He gave us His imagination. इसका मतलब कि उसने हमें अपनी जो उसने इमेजिनेशन, जो कल्पना की ताकत है वो हम में दी है. If I can't see myself in it, अगर मैं अपने आप को बिलियनर नहीं देख सकती, I can never able to make it. तो मैं बन भी नहीं सकती. That's अब why भाई even कितने लोग बिलियनर बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर दो. from today I will pray that you will get a billionaire. मानसी नहीं चाहती. I will pray that you will get a billionaire. आमेन, आमेन. मैं already Let's see. So if you can't let your son compromise, अगर आप इस संसारिक पिता होके अपने बेटे को समझौता नहीं करते हुए देख सकते, you just gave a birth to the son, आपने सिर्फ जन्म दिया है अपने बेटे को, but he created you. पर वो है जिसने आपको अपनी समानता में बनाया है. They all talks about the love that comes from a birth. हमेशा बोलते हैं कि जिसने पैदा किया है वो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा वो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है. But he's the one who made you. पर वो है जो आपको आपकी माँ की कोख में बुनता है. How much more he loves you. वो आपसे कितना प्रेम करता होगा. And because we lack this revelation, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि ये क्या है पिता का प्रेम, क्या है उस परमेश्वर का प्रेम, हम खोते हैं इन चीज़ों को. we go there, हम वहाँ जाते हैं we're gonna suffer. और हम सफ़र करते हैं. दोबारा बोलती हूँ, शायद वो रह गया था. क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप जिसने हमारे को पैदा किया, जिसने हमारे को कोख में रखा, उससे बढ़कर हमें कोई प्रेम नहीं करता. और वो माँ बाप भी आपको सब कुछ देना चाहते हैं अपनी हैसियत के बाहर, कई बार अपनी हैसियत से बढ़कर भी देते हैं. पर वो पिता है जो आपको माँ की कोख में बुनता है. अगर आपने साइंस पढ़ी होगी सबने, सुमित भैया अब मेरी तरफ देखो, वो परमेश्वर है जो आपकी माँ की कोख में आपको बुनता है. अगर आपने साइंस पढ़ी होगी ना, तो आप देखना कि बच्चा कैसे माँ की पेट में बनता है. इट्स अनइमेजिनेबल. मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे बन रहा है. हमें तो लग रहा है औरत खा रही है तो उससे सब बन रहा है, पर आप साइंस देखो वो कैसे कैसे उसके अंग बनते हैं ना, वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है. तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं जो माँ तुझे जन्म देती है, जो पिता तुझे जन्म देता है, वो तुझे अपनी हैसियत से बढ़ के देता है. तो मैं तो तेरा बाप हूँ जो तुझे 9 महीने बुनता हूँ अपने पेट में, तो मैं तुझे बढ़कर क्यों नहीं दूंगा. You know, in the Bible you see many of people suffered. आपने बाइबल में भी देखा होगा बहुत सारे लोगों ने सफरिंग को सहा. For example, let's go for Job. आप अयूब को ही देख लीजिए. You know why Job suffered? आपको पता है कि अयूब ने क्यों सफर किया? Because he carries the revelation. क्योंकि उसके पास एक प्रकाशन था. That revelation says, उसका प्रकाशन कहता है, the one who gives also the one who takes away. उसका प्रकाशन बहुत ही गलत था, सॉरी. उसके पास एक प्रकाशन था परमेश्वर का कि जो देता है उसको लेने का भी हक है. And because he has that revelation, क्योंकि उसके पास वो प्रकाशन था, that's what happened to him. और वही उसके साथ हुआ कि वो बहुत अमीर व्यक्ति था और उसने बहुत सफ़र किया, उसने सब कुछ खो दिया. But here,
पर यहाँ पर God said, whatever I give to you, it's irreversible. और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जो मैंने तुझे दे दिया मैं उसको वापस कभी भी नहीं लेता। Whosoever believes that, और जो भी विश्वास करता है, you know what happens? आपको पता है क्या होता है? Whatever they have, it can never be stolen. और जो उसने दिया वो कभी भी चुराया नहीं जा सकता। Maybe I am the most rebellious, हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी बच्चा हूँ, but still my son title won't be changed. उसके बावजूद भी जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर एक पदवी दी है उसको वो चेंज नहीं करता। No matter what I do, हो कुछ भी मैं करूँ चाहे, in the end, अंत में if I cry to him, और मैं जाकर रोता हूँ उसके पास, he can't tolerate that. वो उस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। वो कहेगा तू रो रहा है और मैं तुझे, वो फटाफट हमारे पास भागा हुआ आ जाएगा। That's why he was keep on saying to you, इसीलिए वो बार बार कहता है if हमसे, you turn your eyes to me, और तू अपनी आंखों को मेरी ओर लगाएगा, before you even can turn, और तू इससे पहले कि तू बोले, just the thought of turning to me, और सिर्फ तेरे दिमाग में ये विचार ही आएगा कि मैं पिता के पास जाता हूँ और माफी मांगता हूँ, I will be for you. और मैं तेरे लिए और भागा चला। Even for the prodigal son, he is coming far away. और ऐसे ही अगर आपने उड़ाव पुत्र की कहानी पढ़ी होगी, वो बहुत दूर ही था, उसका पिता छत पे था और But he saw. Never interrupt my flow. सॉरी, There's a prodigal son who is coming. जब जो उड़ाव पुत्र आ रहा था But there is a father who stands above. और जो पिता था उसने अपने बेटे को देखा, And he's seen from the above और उसने उस ऊंचे स्थान से अपने बेटे को दूर से ही आते देखा। before he even enters. वो अभी आया भी नहीं था The father ran और पिता वहां से भागता हुआ to hug. और उसको गले लगाने के लिए दौड़ा। Imagine if I come with a pig, waste of things. आप इमेजिन कीजिए कि वो बेटा जो था उसके पास से सूअरों की बदबू आ रही थी I'm having the smell of a pig. और बदबू थी उसके अंदर। You know what you're gonna say to me? आपको पता है आप क्या कहोगे? Go and take a bath. फर्स्ट हम ये कहेंगे अपने बेटे को या भाई को कि पहले आप नहा के आइए। But the father's love is not like that. पर पिता का प्यार ऐसा नहीं है। Maybe your love is like that. हो सकता है हम सबका प्यार ऐसा हो, But Creator's love is different. पर जिसने हमें बनाया उसका प्यार बहुत अलग He है। doesn't care what you are covered with. वो परवाह नहीं करता कि आप कितनी गंदगी से क्यों ना भरे हो। He not just hugged him, वो सिर्फ गले ही नहीं लगाया वहां पर पिता ने, he kissed him. उसने वहां पर उसको चूमा भी। He kissed him on the neck where the smell really comes. और उसने उसको वहां पर, अगर बाइबल में आप पढ़ेंगे, जब पिता ने उसको बेटे को गले लगाया तो उसको चूमा सिर्फ यहाँ पे नहीं, उसने उसको गर्दन पर चूमा, शायद जहाँ पर ज्यादा स्मेल होती है। Who gonna kiss their son when they are covered with the very worst smell? कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे को चूमेगा जब आपके उसके बेटे में सूअरों की स्मेल आ रही होगी? For me, I like dogs. पर मेरे को कुत्ते बहुत पसंद है। But the dog's food, the smell of dog's food gives me vomit. पर जो कुत्ते हैं उनका जो खाना होता है जो बाजार से मिलता है, अगर मैं उसको देख लूं तो मुझे बहुत उल्टी आती If है। it's open right there, if I get the smell, I will vomit right away. अगर कोई दूर भी मेरे सामने खड़ा होकर कुत्ते का खाना खोल रहा होगा तो मुझे बहुत स्मेल आती है और मेरे को उल्टी आ जाती है। And here we are talking about the father पर यहाँ पर हम एक पिता की बात कर रहे हैं who not just smelled the pig smell, the son was eating the pig's food. और यहाँ पर जिस पुत्र की हम बात करें, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो उस बेटे के ऐसे दिन आगे थे जहाँ पर उसे सूअरों का खाना खाना पड़ता था और सूअरों के बीच में रहना होता था। जब ये बेटा अपने पिता के पास आया तो पिता ने उस स्मेल को, उस सब को छोड़कर उसे चूमा। And the pig smell is not the worst part here. और यहाँ पर जो स्मेल है यही सबसे बड़ी बात नहीं है। He did not took bath for days. उसने जो बेटा था उसने बहुत दिनों तक नहाया भी नहीं था। And that's not even the worst part. इससे भी बढ़कर एक बात है, He walked in the sun. That climate is not like Delhi. वॉक इन द सन, मतलब सूरज में बदबू आती सूरज में, और वो बाहर घूम रहा था उसके साथ। It was so, he was covered with the pig smell, वो सूअरों की बदबू से भरा हुआ था, sweating वो पसीने से भरा हुआ था and walking in the sun and not taking bath for days. और वो बहुत दिनों से धूप में चल रहा था, उसने नहाया भी नहीं था। Imagine your son is come like that. अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए जो आपका बेटा और बेटी ऐसी स्थिति में आपके पास आते हैं। And I think some of you will say like, first go and take the bath before I get the flu. हाँ, हम में से सब ये लोग कहेंगे कि तू पहले मुझे बाद में छूना, सीधा बाथरूम में जा, नहा के आ पहले। But your father, you might be walking, हो सकता है कि आप चल रहे हो, but father will come running.
जब अगर आप उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी में पढ़ेंगे, वो वहां से चलकर आ रहा था, पिता ने उसको दूर से ही देखा तो वो चल के उसके पास नहीं गया, वो दौड़ा हुआ भागा हुआ उसकी ओर गया। You might be wondering what you want to say to him. Father, I am not deserved to be your son. I am so prodigal. I wasted everything that you gave me, etc., etc. और अगर आप जब अपनी गलतियों से माफ़ी मांग के आप वापस आ रहे होंगे, आप मन में सोच रहे होंगे मैं अपने पिता से ऐसे माफ़ी मांगूंगा, मैं ये कहूँगा, मैं वो कहूँगा, पर पिता ऐसा नहीं करता। But praise God, पर परमेश्वर की महिमा हो, God won't listen to those thoughts. परमेश्वर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप माफ़ी मांग भी रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, He's just happy that his son came back. पर वो खुश होता है कि आप वापस आ गए। And here we are Christians. And here we are Christians. और यहाँ पर हम विश्वासी हैं And we go on our knees. और हम अपने घुटनों पर जाते हैं। Father, I am dust. I've done this many things. Father, forgive me. I know that you won't forgive me. I'm going to fast for 40 days. और यहाँ पर हमारी वो स्थिति है कि हम घुटनों पर बैठ जाते हैं और गाते रहते हैं, प्रभु मैं ये करके आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से ये गलती होगी। हाँ पिता, मुझे पता है कि तू मुझे माफ़ नहीं करेगा, पर फिर भी मुझे माफ़ कर दे। Until you give it to me, I won't go away. प्रभु जब तक तू मुझे देगा नहीं तब तक मैं घुटनों से खड़ा I'm नहीं so होऊंगा। stubborn. प्रभु मैं बहुत जिद्दी हूँ। Who said God will withhold anything from you? किसने कहा है आपको? क्यों हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं कि हमें परमेश्वर से भीख मांगनी पड़ती है? किसने कहा कि परमेश्वर आपको हर एक चीज नहीं देगा? But Apostle Jacob struggled. He was struggling for 24 hours. पर जो याकूब था वो बहुत, जब उसको स्वर्गदूत को मिला उसने उसके साथ मल्ल युद्ध किया। And remember, it was an angel, not God. और देखिए कि जब याकूब ने मल्ल युद्ध किया तो वो परमेश्वर के साथ नहीं कर रहा था, वो स्वर्गदूत के साथ कर रहा था। You cannot fight with God आप परमेश्वर के साथ लड़ नहीं सकते because He never gives you the chance. क्योंकि वो आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। Because before you even ask, He will give it to you. क्योंकि परमेश्वर ऐसा है कि आप अपना मुंह भी चाहे ना खोले, मांगने से पहले आपके सिर्फ विचार ही आया होगा दिमाग में, वो उसको पूरा कर देता है। And Jesus was keep on saying in the entire His ministry. यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, 3 साल अपनी सेवकाई कर रहे थे, तो वो हर बार यही कहते थे। He keep on demonstrating whatever He is preaching. वो हमेशा दिखाते थे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। When you go to your friend's house or when you go to your father, will he give bread? If you ask for bread, will he give you a snake? इसीलिए यीशु मसीह जो अपनी सेवकाई करते थे वो बार बार इस चीज़ का उदाहरण देते थे कि तुम अपने बेटे को, अगर तुम्हारा बेटा रोटी मांगे तो क्या तुम उसे सांप दोगे? Will you give him something else? क्या तुम उसे, जब वो अगर वो रोटी मांगे तो क्या तुम उसे पानी दोगे? If I am, I will give biryani. अगर मैं उस जगह होता कि जब अगर तुम रोटी मांगते तो मैं तुम्हें बिरयानी देता। Right? Don't ask me, that's why. That's why don't ask me. You can treat it after service. So here the thing is, God is keep on saying like, if your father won't give you these things, if your father won't give you something harms you, why do you think that Heavenly Father will give you something that harms you? इसीलिए यीशु मसीह अपनी 3 साल की सेवकाई में बार बार बोलते रहे कि तुम अगर इस संसारिक पिता होकर और संसारिक माता होकर अपने बेटा और बेटी को बेस्ट देते हो, तो मैं जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मैं तुम्हें हर एक चीज से बढ़कर क्यों नहीं दूंगा? Why wouldn't He? क्यों नहीं देगा वो? Tell me one reason why wouldn't He? आप मुझे सिर्फ एक उदाहरण दीजिए, एक वजह बताइए जिसकी वजह से परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करेगा। You might think like, I did not ask God properly, that's why He's not giving me my food. हो सकता है आप ये सोचें कि मैंने ना सही से प्रार्थना नहीं करी है, सही से मांगा नहीं, इसलिए मेरे पिता ने मुझे नहीं But दिया। He never sees your words. पर वो आपके शब्दों को नहीं देखता, He will see your hunger. पर वो आपकी भूख को देखता है। When prodigal son returned, he did not see the words. जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो उसने उसकी गंदगी को नहीं देखा, All he see was the action that his son was returning. सिर्फ उसने एक चीज नोटिस करी कि मेरा बेटा जो मुझे छोड़कर चला गया था वो वापस आ रहा है। I don't know if this cannot convince you about the God's nature. मैं नहीं जानता कि अगर ये चीज आपको कन्विंस नहीं कर पा रही परमेश्वर के प्रेम के बारे में, I don't know what will. और मुझे नहीं पता और क्या बाकी है जो आपको बता पाएगा कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। And blind men were calling, Son of David, Son of David. अंधा, अगर आपने पढ़ा होगा, बर्तमई वहां पर रोड पर खड़ा हुआ चिल्ला रहा था, दाऊद की संतान यीशु, दाऊद की Heal संतान me. यीशु, मेरे को चंगा कर दे। And he did not ignore the beggars. और उसने वहां पर भिखारियों को भी अनदेखा नहीं किया, He just went and healed. और उसने वहां पर उनको गया और उनको चंगा कर दिया। And one person asked, Lord, if it is your will, heal me. और एक मनुष्य ने बाइबल में पूछा कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मुझे चंगा कर दे। And he was like,
so be it. और परमेश्वर ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ And ऐसा हो जाए। is there any person where you go to God and asking, Lord, if it's your will, heal me? Do you think He won't heal you? अब कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जब परमेश्वर को आप ये कहें कि प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे चंगा कर दे, और वो आपको चंगा नहीं करेगा। And you know what's more interesting? आपको पता है एक और सबसे लुभावनी बात क्या है? He won't waste his time explaining to you, वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा आपको समझाने में, saying like it is my will. और वो ये नहीं कहेगा कि हाँ ये मेरी इच्छा है। Because at that time, you know what He does? आपको पता है वो क्या करेगा? The moment you ask, He was like, get it. वो वेस्ट नहीं करेगा, वो वहाँ पे अपने आप को बड़ा प्रकट नहीं करेगा, वो तूने मांगा था मैं तेरी प्रार्थना सुनकर आ गया। वो आप जैसे आपने मुंह खोला ही नहीं, वो उससे पहले आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। And this is the nature of God. ये है परमेश्वर का स्वभाव। Love means giving. पर प्यार का मतलब है देना। And He was saying, if you do this, I will do this for you. परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू मेरे वचनों पर चलेगा तो मैं तेरे लिए हर एक चीज पूरी करूंगा। And before you even do that, I already died for you. इवन इससे पहले कि तू मेरे लिए ये सब करे, इससे पहले ही मैं 2000 साल पहले आया और तेरे पापों को शापों को मैंने अपने क्रूस पर ले लिया। Don't think like you loved me and then I loved you. इसलिए ये मत सोचो कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं इसलिए वो आपसे प्यार करता I है। loved you and you loving me now. पर सच्चाई ये है कि परमेश्वर ने पहले आपसे प्रेम किया इसलिए आप उससे प्रेम करते हैं। That means whether you love God or not, it does not matter. इसका मतलब ये है कि आज आप प्यार करते हैं, कल आप प्यार ना करें, Because- फिर भी वो चीज परमेश्वर के प्रेम को आपके लिए नहीं बदल सकती। Because His love, He loved you when you don't even know Him. क्योंकि परमेश्वर ने आपसे तब प्रेम किया जब आप उसे जानते भी नहीं थे। And now you think like, I don't love God, maybe He don't love me now. और इस पर हम आज ऐसा क्यों सोचते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर से प्यार नहीं करता इसलिए परमेश्वर भी मेरे से प्यार नहीं करता होगा। Amen? आमेन। I don't know if this is making sense. मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपकी शक्लें देख के तो मुझे नहीं पता चल रहा। Let's go to book of Matthew chapter 13. मत्ती 13 में चलते हैं। आ रहा है समझ में? प्रशांत, So from today, you know what you have to do? आपको पता है हमें आज क्या करना है? Let's go to on our knees. अपने घुटनों पर जाइए And let's pray, Lord, I am thus, I am nothing but thus. Lord, please hear my cry. और आज आपको जाकर सबको ये करना है। क्या करना है बताओ शिवांश, क्या करना है? घुटनों पे आना है, उपवास करने हैं, भीख मांगनी है परमेश्वर से? मांगनी है? क्यों नहीं मांगनी? Everyone's attention should be here, please. क्यों नहीं मांगनी भीख? क्योंकि उसने हमारे मांगने से पहले ही हमें दे दिया। हमें क्या करना है? वचन को पढ़ना है और उस पर चलना है। No, let's just pray like, Lord, make me your servant. नहीं, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। मैंने बोल दिया शिवांश, आज जाके घुटनों में बैठना कि प्रभु मैं तेरा नौकर हूँ, Make me your servant. प्रभु मैं तेरा नौकर हूँ। Understand your sarcasm. He just came on knees. Okay, let's go to book of Matthew chapter 13 verse 15. 13 में चलते हैं, मत्ती 13 उसका 15। Okay, I'm going to read from verse 14. मैं 14 से पढ़ूंगा। It says, in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which says, by hearing you shall hear, you shall not understand. And go to verse 15. It says, for this people heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have closed. I think you guys are sleeping. And it says, and lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears and should understand with their heart and should be transformed so that I can heal them. Do I need to translate that also? Yeah. Sleeping? Yes. Okay. तुम्हारे 14 से पढ़ेंगे। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। हम सुन रहे हैं कानों से और समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? यशाया की No. भविष्य It's applying now. The prophecy is fulfilled now. क्या यशाया की भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो रही है? आप सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे? तुम कानों से सुनोगे तो तुम पर समझोगे नहीं, और आंखों से देखोगे पर तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उनकी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप सुन लें और उस बंधन से आजाद हो जाएं। And when he said their eyes are closed, और जब उसने बोला कि तुम्हारी आंखें बंद हैं, you know when you close your eyes, आपको पता है जब हमारी आंखें बंद होती हैं, one time when you don't want to listen, हो सकता है कि आप एक बार ना सुनना चाहें, or second time when you come to the church for sleeping. और आप दूसरी बार जब चर्च आते हैं सोने के लिए। Eyes are closed, right? When you sleep, eyes are closed or not? यस See? नहीं आया समझ में।
समझ लो मैं पढ़ रही Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। So, how many of you can say that our God is great? अब आप ये प्रकाशन पाने के बाद कि वो पिता आपको अपनी समझ से बढ़कर देता है, तो कितने लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत भला है? अपने हाथों को Let's उठाएंगे। live like this only. You know why? I'm not sure. Yes. You did not receive God? वो भला है या नहीं है? वो बहुत भला है। So, this is the reason why many Christians are suffering. यही वजह है आज जो बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, वो आज भी घुटनों पर आकर। If you think like your pastor should be poor, आपको लगता है कि अगर आपका पासवान गरीब होना चाहिए, and you will also live like poor. आप भी गरीब ही होंगे। Ezekiel thought like, okay, I should be, being a prophet means you need to sacrifice, not sacrifice. He thought like, if being a prophet means you will be on the streets. And just translate. दोबारा बोलना। Ezekiel thought like, I want, being a prophet means living on the streets. जो ये इज़िकल था उसने सोचा कि भविष्यवक्ता होने का मतलब ये कि आप सड़कों पर घूमते रहें, That's why he lived on the streets. इसीलिए वो सड़कों पर घूमता रहा। What did I say is true or not? मुझे नहीं पता जो भाई ने बोला वो सच है या नहीं है, मुझे याद नहीं है, आज याद नहीं है। आई डोंट रिमेम्बर अबाउट इज़िकल। And who is Ezekiel? ही इज अ प्रॉफिट जो उसने बोन्स So you guys know everything about Ezekiel? not fully, I don't remember, but he is the one who spoke to the bones, dry bones. Yes. We all know about the dry bones. ये एजिकल वो भविष्यवक्ता है जिसने हड्डियों की सूखी तराई में बोला था और वो हड्डियों में जाना। And now, as an Old Testament prophet, he went and prophesied to the dry bones, and dry bones came to life. और उसने, अगर आप एजिकल की स्टोरी को पढ़ेंगे, ये वो भविष्यवक्ता है जो सूखी हड्डियों, मरी हुई हड्डियों की तराई में गया था और उसने उनको बोला परमेश्वर के वचन से, और वो सारी हड्डियां, वो सारे लोग जिंदा हो गए थे। And forget about the dry bones. भूल जाइए सूखी हड्डियां। If I send you to a dead person, you won't even raise. यहाँ पे ये भविष्यवक्ता है जिसने सूखी हड्डियों से बोला और वो जिंदा हो गए। उसने इतना बड़ा काम किया, अगर हमें आज बोलेंगे कि एक बंदा मर के जाके उसके लिए प्रार्थना कर दो, हम वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। Will you go to pray for a dead person? क्या आप जाओगे? मतलब कि आपका विश्वास इतना बड़ा है कि आप एक मरे हुए व्यक्ति के लिए जाकर यीशु के Forget नाम से about प्रार्थना flesh करो। being, into the ground and bones are scattered. She said I went twice to pray for dead people and he did I not. will tell you that also. मैं आपको वो भी समझाऊंगा। Let's go to book of Isaiah chapter 6. आइए फिर से हम यशाया 6 में चलते हैं। What happened to pastor today? He was keep on changing to Isaiah to Matthew. Isaiah, Matthew. No, we are not thinking. We are not thinking. In Isaiah chapter 6, यशाया 6 में in verse 1, पहले वचन में, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne and high and lifted up, and his train filled the temple. यशाया 6 उसका पहला वचन कहता है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। And in the verse 1, he has the visitation, right? और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले वचन में उस यशाया भविष्यवक्ता को परमेश्वर का दर्शन हुआ, तभी तो उसने सिंहासन पर बैठा हुआ देखा उसको। And in the verse 5, then I said, woe is me, for I am undone, because I am the man of unclean lips, and I dwell midst of the people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. फिर 5वें वचन में यशाया कहता है, तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा दिराज को अपनी आंखों से देखा है। And you know one thing? आपको पता है एक चीज? Because Isaiah said, my eyes are uncleansed. My lips are uncleansed. क्योंकि यशाया ने बोला कि मेरे होठ झूठे हैं, God was like, अपवित्र हैं। Okay, he was thinking that his lips are unclean. यहाँ पर यशाया अपने ऊपर दोष लगा रहा है कि मेरे होठ तो अपवित्र हैं। So you know what he did? आपको पता है उसने क्या किया? Took a coal and burned the lips. परमेश्वर ने। Angel. तब क्या पर ओ गॉड, हमें नहीं बोलना ऐसे।
यहाँ पे यशायाह ने क्या किया, वो हमारी तरह आज के लोगों की तरह प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं तो पवित्र हूँ, मैंने तेरा दर्शन देख लिया। तो वहाँ पर आगे क्या हुआ कि स्वर्गदूत आया, उसने उसकी जीभ पर कोयला रख दिया कि ताकि वो पवित्र हो जाए। In the verse 7, and he laid it upon my mouth, and I said, he touched my lips and said, thy iniquity is taken away, thy sin is purged. 6 और 7वें वचन में लिखा है, तब एक शराब हाथ से अंगारा लिए हुए जिसे उसे चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। And you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? Isaiah, are your assumptions, are your everything is done now? फिर परमेश्वर ने कहा कि जो तू अपने बारे में ये बुरा बुरा सोच रहा था वो खत्म हुआ या नहीं हुआ? Is it done? Your हो sins गया। gone away, your iniquity gone away according to your revelation. क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो तेरा प्रकाशन है अपने बारे में कि तू बुरा है, तू अपवित्र है, मैंने तेरे पर कोला रख दिया, तुझे छू लिया, अब सही हो गया सब कुछ या नहीं? Otherwise, I will bring another coal. अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा आके दूसरा कोयला रखता हूँ। So everything was calmed down. तो सब ठंडा हो गया वहाँ पर। And in the verse 8, और परमेश्वर 8वें वचन में are you कहता है, done with your assumptions? तब मैंने प्रभु को यह वचन सुना कि मैं Are you done with your assumptions? हाँ, क्या जो आप सोच रहे थे वो खत्म हो गया अपने बारे में? You want me to burn your lips? I done. तो आप तुम चाहते थे, तुमने कहा कि मैं अपवित्र हूँ, मैंने कोयला रख के तुम्हें शुद्ध भी कर दिया। Are we done? अब खत्म होगी सारी अपवित्रता, पवित्र हो गई। Now I heard the voice of the Lord saying, who shall I send? तब फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं किसको भेजूं? And if Isaiah would have said like, Lord, there is a man that I know, he's so holy to you, send him. 8वें वचन में देखा होगा, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। जब ये सारा उसका आदान प्रदान टेंट्रम्स हो गए, तब उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर ने कहा मैं किसको भेजूं? अगर परमेश्वर आज हमें कहता है कि मैं किसको भेजूं, हम कहेंगे नहीं 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 प्रभु आप उसको भेज दो, मैं तो कम होली हूँ, आप उसको भेजो, वो ज़्यादा होली है। If Isaiah would have said like, Lord, I know this person, Ezekiel, he is so good, send him. और वहाँ पे अगर यशाया परमेश्वर से ये कहता कि प्रभु मैं नहीं पवित्र हूँ, पर एक और भविष्यवक्ता है एजेकियल, आप उसको भेज दीजिए। Or send Apostle Peter, he is also very holy. और मैं शायद ये भी कहूँ प्रभु मुझे नहीं, आप अपोस्टल पीटर को भेज दो, वो बहुत पवित्र If है। Isaiah would have said that, अगर यशाया ने वहाँ पर परमेश्वर को ये बोला होता, there would be a different scenario would have happened there. यहाँ पर और भी कुछ हो रहा होता, सिर्फ कोयले से जीभ नहीं, पूरा शरीर। Thank God he said, send me. हाँ, और फिर धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का कि अगर आप वचन में पढ़ेंगे तो यशाया ने प्रभु से कहा कि हाँ प्रभु मुझे भेज। If Lord wants to help her, अगर परमेश्वर मुझे हेल्प करना चाहता है and she has potential to help, और नैना के पास वो चीजें हैं मेरी हेल्प करने के he लिए, won't come to Nana saying like, help Anu. वो नैना के पास ये नहीं आएगा परमेश्वर कहने की अनु की हेल्प कर। She is struggling. Who should I send to help? परमेश्वर नहीं आएगा कहने के लिए, परमेश्वर सिर्फ सोचेगा कि अनु बहुत स्ट्रगल कर रही है, मैं किसको भेजूं। No, she will hear the thoughts of God. ये पर हाँ वही तो बोल रही हूँ, ये परमेश्वर की बात को सुन रही होगी वहाँ पर। And God will be like, Anu is struggling. Who shall I send? परमेश्वर सिर्फ सोच ही रहा होगा कि मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं। And if Anu sends, if Nana says like, send Rishabh, और अगर और नैना, जबकि नैना के पास वो सामर्थ्य है कि जो मेरे को जरूरत है वो नैना पूरी कर सकती है, पर नैना वहाँ पर ये कहे नहीं नहीं मुझे नहीं, आप ऋषभ को भेज दो। you know what God will say? आपको पता है परमेश्वर वहाँ पे क्या करेगा? If I want Rishabh to help, I will go and ask Rishabh, who shall I send? परमेश्वर वहाँ पे कहेगा अगर मुझे ऋषभ को भेजना हो तो मैं ऋषभ के पास जाके बात कर रहा हूँ, मैं तेरे पास बात कर रहा हूँ, सुन। Here. सुनने नहीं पाई तू। And okay, now the visitation is done. अब यहाँ पर एक आमना परमेश्वर के साथ जो आमना सामना He वो हो said, गया। send me. अब यशाया ने बोला कि मुझे भेज। In the verse 9. और 9वें वचन में And he said, go and tell these people, you hear indeed, but you did not understand. You see indeed, but you did not perceive. 9वें वचन में यहाँ पर यहोवा ने यशाया को बोला कि उनसे कहा जा इन लोगों से कह कि सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। In the verse 10, और 10वें वचन में he said, make the heart of these people fat. तू इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर Make the eyes shut. और उनकी आंखों को बंद कर, Make their ears shut. उनके वो ऐसे ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने। Here is Isaiah got his first visitation, and now God is saying, open the spiritual eyes or close the spiritual eyes. यहाँ पर कितनी अजीब सी सिचुएशन है। यहाँ पर पहली बार यशाया को परमेश्वर का दर्शन हुआ और परमेश्वर आके कह रहा है कि भैया इनकी आंखों को बंद कर दे, इनके कानों को इनकी आंखों को बंद कर दे, इनके कानों को मोटा कर दे, इनके हृदय को मोटा कर दे ताकि इन्हें सुन ना लें और चंगे ना हो जाएं। It's like Isaiah got the visitation, he just got ordained now.
और आए वहाँ पे यशाया सोच रहा होगा मुझे तो लग रहा था कि परमेश्वर मुझे कुछ अच्छा करने के लिए कहा, पर यहाँ तो कुछ और कह रहा है, मुझे मानना पड़ेगा. Now Lord is saying, open the spiritual eyes or close the spiritual eyes. And Isaiah would be thinking, no one taught me how to see in the spirit. और यहाँ पर यशाया सोच रहा होगा मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि कैसे आत्मिक आंखों से देखा जा सकता It's है. just a vision, maybe my imagination. हो सकता है कि सिर्फ मैं जो परमेश्वर को देख रहा हूँ ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है, पर वो सही में मेरे पास नहीं खड़ा हुआ. Now he is telling me to close the spiritual eyes. और यहाँ पर परमेश्वर मुझे कह रहा है कि सामने वाले लोगों की आत्मिक आंखों को बंद कर दे. Why would he tell me to close? I think it must not be the Lord. और यहाँ पर क्योंकि परमेश्वर कुछ अलग और उल्टा करने के लिए कह रहा है, यशाया की शायद मनोस्थिति ये भी हो सकती है, वो ये सोच रहा होगा ओहो जो ये इमेजिनेशन कर रहा हूँ ये परमेश्वर नहीं है, ये शैतान मेरे से बात कर रहा है. But then again, it might be my imagination. अ, Just say imagination. मेरी कल्पना है सिर्फ. Then again, his scold might have reminded him, but अगर वो सोच ही रहा होगा कि वो मैं तो कल्पना कर रहा हूँ, ये परमेश्वर नहीं हो सकता. परमेश्वर मुझे ये नहीं बोल सकता कि इनकी आंखों को बंद कर दे. इतने में एक और कोला आएगा और मेरी जीप पे रखा जाएगा, मुझे याद आएगा नहीं 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 ये परमेश्वर ही है. there is a coal that reminds you. या इसीलिए एक कोयला परमेश्वर ने रखा है जो बार बार हमें याद दिलाता है कि ये परमेश्वर की आवाज़ है. If Isaiah would not say like my lips are unclean, अगर यशाया ये ना बोलता कि मेरे होठ जो हैं वो अपवित्र हैं, he would go just like to Jeremiah and touch the lips, just like that he would have touched. इसी तरह अगर हाँ कि यहाँ पर भाई ना वो एक कंपैरिजन बता रहे हैं. अगर मैंने यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ी होगी तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने छुआ था और बोला था मैं तुझे अभिषेक करता हूँ, क्योंकि यशाया ने ये बोला कि मैं अपवित्र हूँ, इसलिए परमेश्वर कोले के साथ आया. And Jeremiah thought like, Lord, if I go, people won't listen to me. I'm a kid. अगर ये यही यिर्मयाह ने सोचा होता प्रभु लोग मेरी सुनेंगे नहीं क्योंकि मैं बच्चा ही हूँ. He done 40 years ministry. उसने 40 साल सेवकाई करी. In the 40 years ministry, he's barely saved 3 souls. उस 40 साल में सिर्फ उसने 3 आत्माओं को बचाया. And here is Jonah. और यहाँ पर योना है. I won't go and preach. If I go and preach, Nineveh will get saved. यहाँ पे योना है जो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा निनवे के लोगों को बताने के लिए, क्योंकि वो अगर वो सुन लेंगे तो वो बचाए जाएंगे. I will just speak one time and they will get saved. और सिर्फ मैं बोलूँगा ही और वो बच जाएंगे. I don't want that. मैं नहीं चाहता. And this will stop their destruction. क्योंकि ये नाश को रोक देगा. Let me go to Tarshish. मैं तर्शीश को चला जाता हूँ. And remember what Jonah's revelation is? आपको पता है कि योना ने क्या किया? Just one day, एक दिन one preaching. एक सुसमाचार. That is also not with the heart. और वो भी उसने दिल से नहीं किया. He was forced to do that preaching. और वहाँ पर परमेश्वर ने उसे जबरदस्ती भेजा और उसने उसे मजबूर किया कि तू ये जाके निनवे के लोगों को बोल दे. 1,67,000 people saved. दोबारा बोलती हूँ मैं. यहाँ पर नीनवे योना को परमेश्वर ने बोला कि तू नीनवे में जा, क्योंकि नीनवे में बहुत पाप है, सब कुछ है. वहाँ जाके लोगों को चिता कि तू जो कर रहे हो तो सही नहीं कर रहे हो. नीनवे योना बोलता कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ. फिर परमेश्वर उसे ज़बरदस्ती भेजा और उसने वो बेमन से वहाँ पर खड़े होके बेमन से ही प्रचार किया था. उस बेमन के प्रचार से ही लोगों ने सुना और 1,60,000 लोग वहाँ पर बचाए गए. So now tell me one thing. अब मुझे आप एक बात बताइए. Because Jonah carried that revelation, क्योंकि योना के पास वो प्रकाशन था, he seen himself doing it, उसने देखा भी ऐसा करते हुए, so he believed and he done it. उसने विश्वास किया और उसने कर दिया. But Jeremiah was like, I'm just a kid, no one will listen to me. और यिर्मयाह सोच रहा था कि मैं तो सिर्फ बच्चा ही हूँ, प्रभु कौन मेरी बातों को सुनेगा. 40 years, just 3 souls. उसने 40 साल सेवकाई करी और सिर्फ 3 आत्माओं को बचाया. Think about the revelation you carry. अब आप सोचिए कि आपके पास क्या है, जो आपके पास क्या प्रकाशन है उनसे ज़्यादा है. And when I said, imagine yourself for a billionaire, अब जब मैंने बोला कि अपने आप को एक अरबपति के तरह देखिए, you'll be like Jeremiah, thinking like, no, my situations cannot be, I cannot be like that, and 40 years you will be same. आप यिर्मयाह की तरह सोचेंगे कि भाई को तो कुछ पता नहीं है, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं, मैं अपने आप को बिलियनर कैसे सोचूं. You will be like Jeremiah, and after 40 years also you will be same. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप जब भाई ने बोला और आप ये सोच रहे हो यार मेरी जेब में 10 रुपए नहीं, लाखों रुपए मैंने लोगों को देने हैं, अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप भी यिर्मयाह की तरह 40 साल तक ऐसे ही रहेंगे जैसे आज है. But if you think like Jonah, if this is the God's word, it's gonna change. पर अगर आप योना की तरह होंगे और आप ये सोचेंगे कि जो आज यहाँ से बोला गया है वो सच पूरा होगा और ये हो जाएगा. If you believe just like that, Jonah believed so much. और आपने ऐसे ही विश्वास कर लिया इसके ऊपर. I like Jonah's revelation.
मैं योना की जो प्रकाशन है उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। Very big expectations. उसकी बहुत ज्यादा परमेश्वर से His एक्सपेक्टेशन थी। first time preaching. उसकी पहली प्रीचिंग जो उसने बेमन से करी। Imagine like you come to me with a business plan and say like on day one I want 1 lakh. और आप ये उदाहरण मैं दूंगा कि आप मेरे पास एक बिजनेस प्लान के साथ आते हो और मैं आपको पहले दिन ही 1 लाख रुपए मांग लेता हूँ। No, if you come to me with a business plan and say like you will get you're gonna come with the expectation like, Apostle, I'm gonna start the business today. Tomorrow I will have a 1 lakh. आप ऐसे प्लान से आते हैं कि प्रभु आज अपने एक बिजनेस प्लान के साथ आते हैं कि पीटर ब्रदर मैं ये वाला बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और आज ही शुरू करूँगा और कल ही मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। And people might laugh at you. और लोग अगर आप ऐसे वाला रेवलेशन लोगों के पास लेके जाएंगे तो आपके ऊपर हंसेंगे कि आज शुरू कर रहा है और कल 1 लाख रुपए आ जाएंगे। But you know what God says? पर पता है आपको परमेश्वर ने क्या कहा? My son kept expectation on me. पर आपका पिता आपसे ये देखेगा कि मेरे बच्चे ने ये सोचा है और उसने ये सोचा कि ऐसा हो जाएगा। I won't let his head down in front of people who loved. Rather, I will make his head up. और आपका पिता वहाँ पर ये सोचेगा कि मेरे बेटे ने मेरे से एक एक्सपेक्टेशन करी है, हो ही नहीं सकता कि मैं उसे पूरा ही ना करूँ, चाहे वो कितनी भी असंभव क्यों ना वो फिर भी उसे पूरा करता है। And there will be some of people say like, Apostle, that's impossible. और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि अरे ये कैसे पॉसिबल है कि कल 1 लाख रुपए आ जाएगा, आज बिजनेस शुरू करेंगे। I will start business now and maybe after 3 years I will have 1 lakh income. और मे बी हम ये सोचेंगे कि आज बिजनेस शुरू करता हूँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली 2-3 साल में मेरे साथ इतने पैसे आना शुरू हो जाएंगे। And I'll say, okay, God will say like, okay, let it be as per your faith. और फिर परमेश्वर कहेगा ठीक है भाई, तुझे 2-3 साल में चाहिए तो 2-3 साल में होने देते हैं। But please don't come to me saying like, Apostle, I'm starting business today and tomorrow I'll have 1. सच्ची में मेरे पास ना आ जाना कि मैं आज बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, कल मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक रेवलेशन की बात हो रही है कि हमारी जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उसी पे पिता काम करता है। And if you don't have that revelation, you won't have. अगर आपको ये योना वाला प्रकाशन नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को। Let's go to book of Galatians chapter 1. आइए गलातियों में चलते हैं, पहले चैप्टर में। How many of you are understanding this? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपने पड़ोसी का हाथ खड़ा करेंगे। Is it from the Bible? दीदी कर भी रही है। Is it from the Bible? क्या? Is it whatever I'm preaching is from the Bible जो or मैं is? आज सिखा रहा हूँ क्या वो बाइबल से सिखा रहा हूँ, ये मेरी अपनी किताब से सिखा रहा हूँ? Let's go to Galatians. जोएल समझ में आ रहा है? I never seen church so active. आज से पहले मैंने चर्च खोल लिया है। Before I comment, you read my mind. Verse 16. आइए गलातियों पहला अध्याय उसका 16 वचन। Okay, I will read from verse 15. मैं 15 से पढ़ूंगा। But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace, 14 से 15 से। 15. परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि And in the verse 16, it says, to reveal His Son in me. जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। To reveal His Son in me. मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। Imagine this whiteboard is covered with a blanket. ब्लैक Some curtain. आइए एक इमेजिनेशन करते हैं कि जो ये वाइट बोर्ड है ये एक काले कपड़े से ढका हुआ है। And I cannot reveal what is there मैं ये नहीं जान सकता कि उसमें क्या लिखा हुआ है unless I remove that blanket. जब तक मैं उस काले कपड़े को उस पे से हटाऊंगा नहीं। Yes or no? सही है नहीं? But if I remove the blanket, पर अगर मैं उस ब्लैंकेट को हटा देता हूँ, whatever written here is revealed. जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो वहाँ पर तुम सबको दिखाई देने लग जाएगा। So if I want to reveal something from you, इसी तरीके से अगर मैं आपके अंदर से कुछ दिखाना चाहता हूँ, I need to uncover it. मैं उस जो चीज आपको ढक रही है उसको हटाना पड़ेगा, So it will be revealed. ताकि वो दिख पाए सबको, Whether it's good or bad. चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। This business plan that I said, it's gonna work. जो मैंने अभी ये बिजनेसमैन का उदाहरण दिया था ये सच में हो सकता है, And you will have that 1 lakh. और आपके साथ 1 लाख भी हो सकते हैं। But if you don't carry that revelation, imagine I keep the blanket like this and there is no whiteboard. सॉरी, Imagine I cover the blanket
this thing with the blanket and there is no whiteboard. What is there for me to reveal? कि पीछे कुछ भी नहीं है और उन्होंने ब्लैंकेट ढक रखा है दिखावा किया है। What is there to reveal? कुछ है ही नहीं मतलब अगर हटा भी देंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा ये इस तरह से है कि जैसे पहला उदाहरण था कि काले कपड़े के पीछे व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, पर अगर मैं आपको सिर्फ ये इमेजिन करने कहूँ कि काला कपड़ा रखा है पर पीछे कुछ है ही नहीं, तो बचा क्या दिखाने के लिए? If you don't carry that revelation, what can I do for you? ओ अब आया समझ में मेरे को। मतलब मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो ये प्रकाशन है अगर ये आपके अंदर नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा कि आपको बिजनेस से 1 लाख रुपए कमा सकते हो नहीं कमा सकते। मतलब पहले ये प्रकाशन हमारे अंदर होना ज़रूरी है। There is Jesus in the Paul. That's why God said, let me reveal my son. अगर बाइबल में पढ़ेंगे पौलुस के अंदर यीशु मसीह था, इसीलिए वहाँ पर वचन में लिखा है कि आओ मैं जाकर ये पौलुस के अंदर से यीशु मसीह को प्रकट करता I हूँ। will take off that blanket named Paul and let the Jesus will be revealed. और वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं पॉल के नाम को जो एक काला कपड़ा ढका हुआ है उसके ऊपर वो हटा देता हूँ ताकि लोग उसके अंदर यीशु मसीह को देख पाएं। This flesh is just a cloth. ये जो हमारी जो चमड़ी है सिर्फ ये एक कपड़ा है। You want to read from the Bible? आप पढ़ना चाहते हैं वचन से? When Adam and Eve sinned, जब आदम और हव्वा ने पाप किया God saw them naked और परमेश्वर ने उन्हें नंगा देखा and He said, let me make skin coats for them to cover. और परमेश्वर ने कहा कि जब उन्होंने अपने आप को देखा कि हम नंगे हैं तो परमेश्वर ने कहा कि आओ मैं उनके ऊपर चमड़ी बना देता हूं ताकि वो ढक जाए। Let's go to Genesis chapter 3. आइए हम ये मैं आपको वचन से दिखाता हूँ उत्पत्ति 3 से। Otherwise, you guys won't believe me. हो सकता है कि आप ऐसे तो कुछ नहीं है वैसे। I'm just translate. हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि मैं अपने पास से बता रहा हूँ पर मैं आपको वचन से दिखाना चाहता हूँ। बहुत sarcastic। बहुत पीछे से काटा। तुझे समझ में आ रहा है? Verse 21. तुझे समझ में आ रहा है? Genesis chapter 3, verse 21. हम उत्पत्ति 3 में चलेंगे, उसका 21 पढ़ेंगे। It says, unto Adam and also to his wife, Lord God make coats of skin and clothed them. यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अनरखे बनाकर उनको पहना दिए। So that if I remove the cloth of Adam, अगर मैं आदम के वस्त्रों को उतार दूं, whatever Adam is carrying will be revealed. अगर मैं उसके वस्त्रों को उतार दूं जो उसके अंदर होगा वो आप सबको दिखने लग जाएगा। There is Jesus in Paul, यीशु पौलुस के अंदर यीशु मसीह है and it pleased God to reveal Jesus in Paul, और परमेश्वर को ये भाया कि पौलुस के अंदर यीशु मसीह को प्रकट करे and he removed the flesh named Paul, and so that Jesus will be revealed. और उसने वो उसको उतार दिया ताकि यीशु मसीह उसके अंदर दिख पाए। Whenever you come to the church, इसीलिए जब भी आप चर्च आते हैं I want you to have the revelation. मैं चाहता हूं कि आपके पास ये प्रकाशन हो, So when you have the revelation, क्योंकि जब आपके पास प्रकाशन होगा if you come to me or some other person, और इफ यू कम टू मी or some other person, और अगर आप मेरे पास आए या कोई और आए we'll just remove that blanket. और हम सिर्फ उस चमड़े को उतार देंगे, So whatever you are carrying will be revealed. उसी तरीके से जो आपके अंदर उसको कैरी कर रहे होंगे वो रिवील हो जाएगा। Whether you're carrying a blessing, it will be revealed. You're carrying gift, it shall be revealed. You're carrying prosperity, it shall be revealed. You're carrying Jesus, he shall be revealed. इसी तरीके से जब हम आपके अंदर अगर वो प्रकाशन है तो जब मैं वो कपड़ा हटाऊंगा, अगर आपके अंदर आशीषें हैं, गिफ्ट्स हैं, प्रोफेसी है, वो सब लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी। If you're carrying the curse, it also will be revealed. अगर आपके अंदर पाप चल रहा होगा, ये शाप चल रहा होगा, वो भी रिवील होगा। That's why you see we prophets, when we prophesy, we see under what's there. We see what's you carrying. We see what you are carrying, whether it's a sin or holiness. We're going to इसी say, तरीके oh, से जब you are हम doing this sin, भविष्यवाणी you are dying, करते sir. हैं, भविष्यवाणी करते हैं और उस उपस्थिति में सब कुछ दिखता है कि आप पाप भी दिख जाते हैं, कई बार सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। Prophets always see beyond what's beyond the cloths. जो भविष्यवक्ता है वो आपके बाहरी रूप को नहीं देखता, जो आपके शरीर में, जो आपके दिमाग में वो सब कुछ चल रहा था वो सबको देखता है। Samuel was like, oh, this person should be a king. सैम्यूल ने जब राजा का अभिषेक करने के लिए यिशै के पुत्र के पास जा रहा था तो जब उसने पहले पुत्र को देखा तो उसने बोला कि हाँ हो सकता है ये राजा होगा। God said no. परमेश्वर ने कहा नहीं। Second person? दूसरा पुत्र आया, No. Third? इसी तरीके से चलता रहा।
शैम्यूल ने दाऊद के And Samuel got like, Lord, what do you mean? और जब क्योंकि यिशै के 7 पुत्र थे, सातों पुत्र आते गए जाते रहे, परमेश्वर कहते नहीं नहीं नहीं, तो वहां पर शैम्यूल सोच रहा प्रभु क्या चाहता है, तू सातों तो चले गए, अब कौन Look बचा? at his muzzle. He can be made a good king. प्रभु इस तीसरे नंबर के बेटे को देखो, ये कितना कितना सुंदर, कितना बलवान है, ये राजा हो सकता है। But God said, my king is in the sheep. पर परमेश्वर ने कहा ये मेरा राजा नहीं, मेरा राजा तो खेतों में है जो बकरियों को चरा रहा है। Amen. Amen. Just because you are in the sheep, don't think like, okay, you are meant to be a shepherd. Maybe God meant you to be a king. इसलिए भूल जाइए, हो सकता है कि आज आप एक ऐसी स्थिति में हो, मे बी आप बहुत गरीब हो, या मे बी आपके पास रेवलेशन हो, आप सोच रहे हैं नहीं नहीं मैं परमेश्वर का काम में नहीं कर सकता। आप अपने आप को अपनी आंखों से देख रहे हैं, पर परमेश्वर उस चरवाहे में, दाऊद चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराता था, परमेश्वर में उसमें इस्राएल का राजा देखा। At that time, David is covered with the sheep and with the lamb. जहाँ अगर दाऊद की स्थिति को देखेंगे, वहाँ पे दाऊद सबने भाइयों से दूर गांव में वहाँ पर चढ़ा रहा था और भेड़ों से घिरा हुआ था, He was covered with the lamb. और वो बकरियों से भरा हुआ था। God said, परमेश्वर ने कहा, let me remove that cloth. और परमेश्वर ने वहाँ कहा कि आओ मैं उस ओढ़ने को जो उसके ऊपर है उसे Let हटा me देता हूँ। remove that cloth मैं उस ओढ़ने को हटा देता हूँ, so that the Lion of Judah shall be revealed. ताकि जो दाऊद के अंदर राजा था यहूदा का, वो दिखाई दे सके। That's why you seen him as the Lion of Israel. इसीलिए दाऊद को वो पला बड़ा उन चरवाहों में, उन भेड़ बकरियों में, परमेश्वर ने उसके अंदर राजा देखा था। इसीलिए आज बहुत लोग दाऊद को इज़राइल का राजा बोलते हैं, इज़राइल का शेर बोलते हैं। And Jesus came from the lion. और इसीलिए यीशु मसीह भी उसकी जिनोलॉजी से आया। I don't know if you are understanding this. मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ You रहा। might be covered with the lamb. हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं तो आज ऐसा ही हूँ, Let God reveal the lion in you. पर परमेश्वर जो आप में देखता है वो देखिए। Don't think like your economy is just sheep. आप ये मत सोचो कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं सिर्फ ऐसा ही हूँ। Imagine yourself like billionaires or millionaires. Okay, if you can't imagine that high, just imagine like rich. आप अपने आप को आज अपनी करंट स्थिति के हिसाब से मत देखो, वो देखो जो परमेश्वर आप में देखता है। इसीलिए आप अपने आप को अरबपति, खरबपति और जो बड़े से बड़ा आप देख सकते हो वो देखो। But then again, if you see yourself like that without dedication, it's nothing. सॉरी, If you see yourself like that and if you don't put work into it, like carrying the revelation or something, it's waste. पर अगर आज आप इस प्रकाशन को आज नहीं समझ पाए, और तो ये जब सब सिखाना है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपने आप को परमेश्वर की आंखों से देखना है। I want you to carry this revelation. मैं चाहता हूँ कि इस प्रकाशन को आप सील कर लो अपने अंदर। You operate according to the revelation you carry. जब हम उस प्रकाशन में होते हैं तो हम उस प्रकाशन के अनुसार काम करते हैं। If you say like something bad gonna happen, something bad gonna happen, I just preached gospel here, something bad gonna happen, devil gonna come and attack me. Yeah, definitely you shall be attacked. पर अगर आप आज यही सोचते रहेंगे, ओहो अगर मैंने आज यहाँ पर प्रचार किया और वहाँ पर प्रचार किया, लोग मुझे डराएंगे, मारेंगे और मेरे पे डेविल अटैक करेगा, तो ऐसा ही होगा। फिर आप वो इमेजिन कर रहे हैं तो वही होगा। And people thought like, if I preach Jesus, I will be put to prison, and it shall be. लोग सोचेंगे, हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं यीशु मसीह का प्रचार करूंगा मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं तो वही होगा। For me, I believe that I am strongly that I am untouchable. मेरा ये विश्वास है कि मेरे को कोई छू नहीं सकता। When I went to Kenya, जब मैं कीनिया गया and we are attending the Benny Hinn's crusade, और मैं जो बेनी हिन का वहाँ पर प्रचार चल रहा था वो मैंने अटेंड किया। I was not even staying in the prayer. मैं प्रार्थना भी नहीं कर रहा था उस समय। I was so sick because I was not eating from days because I don't like that food. मैं बहुत बीमार अपने आप को महसूस कर रहा था क्योंकि मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, क्योंकि मुझे वहाँ का खाना पसंद नहीं आया। I ordered KFC and it's also tastes worse. मैंने वहाँ पर KFC ऑर्डर किया, वो भी बहुत बेकार लग रहा था। And that's the last night, so I was like, okay, tomorrow morning I have flight and tonight is the last crusade. जब मैंने KFC ऑर्डर किया उस दिन वो लास्ट क्रूसेड था, मुझे लगा कि कल मेरी फ्लाइट है। So I thought like, let me enter the airport and let me eat something. तो मैंने सोचा कि मैं एयरपोर्ट पे जाकर कुछ खा लूँगा। So before I go to the airport, this is the last day. Tonight I was there and I was walking at the gate. और ये पहली रात की बात है, जब मैं फ़्लाइट लेने वाला था इंडिया के लिए, उससे पहली रात की बात है, मैं वहाँ पे वॉक कर रहा था।
and there is a security, और वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड्स थे and we came inside, और वो अंदर आए and we were like, I was sitting in my VIP seat, whatsoever, और मैं वहाँ पर अपनी सीट पर बैठा हुआ VIP सीट पर and we were just praying. और हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे And then after 2 hours, और 2 घंटे बाद क्या हुआ there is an intercessor एक जो इंटरसेसर क्या होता है जो मध्यस्थ की प्रार्थना who करने वाले was लोग होते हैं, praying without ceasing, like they are not even sleeping, they are taking tea to stay awake. वहाँ पर एक मध्यस्थ की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था जो लगातार प्रार्थना कर रहा था और वो बार बार चाय पी रहे थे ताकि उनको नींद ना आए, वो लगातार प्रार्थना करते वो वहाँ पर आए। The prayers were so amazing. उनकी जो प्रार्थना थी बहुत ही अमेजिंग थी। Not just one, they gathered as a group and they were keep on praying from 1 month. सिर्फ एक मनुष्य नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर इकट्ठे हुए और 1 महीने से प्रार्थना कर रहे थे। That person felt like, okay, he wants tea because he was about to sleep. क्यों? और उसने ये सोचा कि मैं बहुत अपने आप नींद में महसूस कर रहा हूँ, मैं चाय पीता हूँ। And he went to get the tea. और वो चाय लेने के लिए गया। And imagine, we are at the same gate. और आप देखिए, आप अपने आप को इमेजिन करिए कि हम भी उसी गेट पर खड़े हैं। I came here with my friends who are elder women. और मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आता हूँ, एक महिला के साथ जो मेरे से बहुत बड़ी And है there is another person with me, boy. और एक और बड़ा मनुष्य है मेरे साथ। We came like this और हम normally. ऐसे आते हैं, नॉर्मली आते We हैं। did not notice anything. हमने कुछ भी नोटिस नहीं किया। But the intercessor, पर जो मध्यस्थ की प्रार्थना करने वाले he व्यक्ति is at the same gate, वो भी उसी गेट पर था। got kidnapped, वो वहाँ पर किडनैप कर लिया गया and he was, his body was covered with the bruises that he was admitted to the hospital. After 2 hours, we came to know the news on stage. और ऐसा हुआ कि वो जो इंटरसेसर वहाँ पे चाय लेने के लिए आया वो वहाँ से किडनैप हो गया और 2 घंटे बाद चला कि उसके शरीर पे बहुत चोटें हैं और He वो was found, but he was sent to a hospital 2 immediately. घंटे बाद वो मिला पर वो इतनी बुरी स्थिति में था कि उसे हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। And Benhin prayed on the stage for him. और बेनी हिन ने पुलपिट से वहाँ पे प्रार्थना भी करी उसके But लिए। I want you to understand one thing. मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ इस उदाहरण से। He is praying from 1 month. वो व्यक्ति था जो 1 महीने से प्रार्थना कर रहा था। I was not even praying. मैं प्रार्थना भी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं इतना बीमार था। And he was alone. पर वो अकेला था, There is security. वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड Same gate? सो एक ही गेट था। Why it happened to him? Why it not happened to me? ऐसा क्यों हुआ कि वो पकड़ा गया पर मैं पकड़ा नहीं गया? I'm a foreigner. He is a Kenyan. वो तो केन्या का बंदा, लोकल बंदा था, उसको वो पकड़ा गया पर मैं तो फॉरेनर था, उनकी लैंड में तो इंडियन था, मैं नहीं पकड़ा गया। Why do you think that is? क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हुआ होगा? And God protects them. That's why he was found. यीशु मसीह ने उसका भी बचाव किया, वो पकड़ा तो गया पर 2 घंटे बाद वो मिल गया। God's protection is on him. परमेश्वर का जो प्रोटेक्शन थी उसके ऊपर थी, That's why he was not dead. इसीलिए वो मरा नहीं, बचाया गया। And God's protection is on me. मेरे ऊपर भी परमेश्वर की प्रोटेक्शन थी But no one ever touched me. पर कोई मुझे छू भी नहीं पाया। You know why? आपको पता है क्यों? The revelation you carry is what sustains you. क्योंकि जो प्रकाशन आपके अंदर होता है वो आपको बचा के रखता है। They were thinking like there will be so much warfare on the Benhin crusade. That's why they were keep on praying that nothing should happen. पता है वो क्या हुआ वहाँ पर? मैं दोबारा से समझाती हूँ। वो उसका प्रकाशन क्या था कि यहाँ पर बेनी हिन का क्रूसेड हो रहा है, बहुत बड़ा क्रूसेड हो रहा है, हमें बहुत प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इसीलिए वो 24 घंटे प्रार्थना करता रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत वॉरफेयर होगी और वॉरफेयर हुई उसके जीवन में और वो पकड़ा गया, चला गया। पर भाई के साथ ये नहीं हुआ क्योंकि उसकी जो रेवलेशन थी, उसको लगा कि बहुत बड़ा क्रूसेड है, बहुत बड़ी प्रार्थना, तभी बहुत बड़ा काम होगा। नहीं, I want you to understand this. मैं चाहता हूँ कि आज आप इस बात को समझें। The revelation you carry जो प्रकाशन आपके अंदर काम करता है is what you live up to. उसी तरीके से आपके जीवन में काम होता है And live according to it. और इसीलिए उसी तरीके से जिए। ये मत सोचिए कि बड़ी प्रार्थना तो बड़े काम होंगे, बड़ा परमेश्वर है तो बड़े काम होंगे। And Amen. She said something. I know. Amen. I And said I know. don't magnify your prayer, but the God is in you. every time we come to the church, and have you ever wondered why I'm giving the offering? Why you? You guys. आपने कभी सोचा कि आप हर संडे आते हैं और अपना दान और दशवांश देते हैं? And the apostle did not even pray, did not even ask. आपने नोटिस किया होगा बहुत जगह कि मैं ध्यान भी नहीं देता कि मैं आपने क्या डाला है, मैं प्रार्थना भी नहीं करता उसके ऊपर। Why do you think you give?
आपको क्या लगता है कि आप क्यों देते हो? Because in the book of Galatians, क्योंकि गलातियों में लिखा है, it says, वो कहता है, whenever you hear the word, जब भी तुम वचन को सुनो, you partake by giving something. आप उसमें, आप जब यहाँ पर बोते हो और उसमें भाग लेते हो देने के द्वारा. So many times I won't pray like blessing should come upon you. मैं बहुत बार ये प्रार्थना भी नहीं करता कि आशीषें आपके ऊपर आनी चाहिए, I'll just pray that the revelation be sealed in your spirit. पर मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि जो आपने बोया उसकी वजह से आपके ऊपर आशीषें आए. मेरी हमेशा प्रार्थना ये रहती है कि जो मैंने आज सिखाया वो प्रकाशन आपके जीवन में काम कर Let जाए, it be sealed in your spirit. वो आपकी दिल में सील कर ले और वो जम जाए. And when the time comes, और जब समय आएगा, there is a lamb वो एक मेमना है who sits on the throne, जो उस सिंहासन पर बैठा who है, worthy to break the seal जो इस योग्य है कि वो उस चेन को तोड़ पाए, and reveal what's sealed in you. और वो रिवील करता है कि आपके अंदर क्या है. So let the revelation be sealed in your spirit. इसीलिए वो रेवलेशन जो मैं सिखाता हूँ वो आपके अंदर सील होने Let पाए. it grow as a seed. होने दीजिए. मैं ये प्रार्थना करता हूँ जो मैंने सिखाया वो एक बीज की तरह आपके अंदर बढ़ने In the पाए, name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में. And if I go any longer, और अगर मैं और ज्यादा बढ़ूंगा इसमें, I know that you guys will be asleep. और मुझे पता है आप लोग सो जाएंगे. So let's stand on your feet in the presence of God. आइए अपने पैरों पर, अपनी टांगों पर खड़े होते हैं. Thank God for apostles ended very quickly. Thank God for the preaching is finished. आइए धन्यवाद करें कि अपोस्टल चुप हो गए. Lift your hands to the heavens.